all the student. Today we are discuss your important topic hormones. So firstly we are knowledge about the endocrine system. So let us start about the endocrine system introduction. So the endocrine system is made up of a gland. So that produce a secrete hormone. So hormones like a chemically substance produced in the body. So that is a regulate the activity of the cell or organs. So these hormones regulate the body growth like a metabolism, the physically and chemically process of the body. So on the other hand, like a sexual development and functions. So these hormones are released into the bloodstream and maybe affect one or several organ and thought out of the body. So the major gland of the endocrine system are the like a hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal, and the reproductive organ. So these are the major gland. So the pancreas is also a part of this system. So it has a role in the hormone production and as well as in the digestive system. So again I will discuss क्या endocrine system क्या है. तो endocrine system क्या है, एक बना होता है ग्लैंड का. एक एंडोक्राइन सिस्टम देखो, एंडोक्राइन सिस्टम किसका बना हुआ है, ग्लैंड्स का. और वो वाले ग्लैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीशन करते हैं हार्मोन्स की. अब हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स इज ए केमिकली सब्सटेंस जो प्रोड्यूस्ड होते हैं इन दी बॉडी में. और डैट इनका वर्क क्या है और फंक्शन क्या है, रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द सेल और ऑर्गन्स. सो लाइक के हार्मोन्स रेगुलेट कैसे करेंगे बॉडी को, लाइक के ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, फिजिकली एंड केमिकली प्रोसेस ऑफ द बॉडी, लाइक के सेक्सुअल डेवलपमेंट में, फंक्शन में, ग्रोथ में, इम्यून सिस्टम में. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द हार्मोन. अब देखो हार्मोन्स आर रिलीज होंगे किस में, ब्लड स्ट्रीम में, और में अफेक्ट करेंगे वन और सर्वेयर ऑर्गन को, किसके, द बॉडी के. सो द मेजर ग्लैंड कौन से हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, लाइक के hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid, adrenaline. These are the major gland of the endocrine system. So pancreas is also part of this system because pancreas से क्या है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है. तो इसलिए भी क्या है, pancreas is also part of this system. So अब क्या है, it has a role in the hormone production and as well as digestive system. So क्या है, हार्मोन्स जो पैंक्रिया है वो एक तो हार्मोन को रिलीज़ करती है इंसुलिन को, देन क्या है, देन वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करती है. नेक्स्ट वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम और जनरल फंक्शन ऑफ हार्मोन. फर्स्टली हेल्प करेंगे रेगुलेट लाइक के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और मेटाबॉलिज्म एंड बायोलॉजिकल क्लॉक लाइक ए कंसंट्रेशन ऑफ कार्डियो स्मूथ मसल और सम इम्यून सिस्टम और इम्यून फंक्शन like a growth, development and reproduction. So endocrine gland like defined as a exocrine gland. क्या है, endocrine gland को अगर हम define करेंगे तो उसको बोलेंगे it is a exocrinal gland like a secrete करेगा produce into the duct so which into the body cavity और body surface like a sweat, oil, mucoses और digestive gland. सो एंडोक्राइन ग्लैंड का मेन काम क्या है, सिक्रीट करना, प्रोडक्शन करना, किसको, हार्मोन्स को इन दी ब्लड में. किस में प्रोडक्शन करना, ब्लड स्ट्रीम में. लाइक के पिट्यूटरी हार्मोन, इसमें कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होंगे, कौन से ग्लैंड इन्वॉल्व होंगे, लाइक के पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व होगा, थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व होगा, पैराथायराइड, एड्रेनलिन और अदर सेलेक्टेड हार्मोन्स. सो नेक्स्ट वन इज दी मेनली टॉपिक जो है हमारा हार्मोन. सो व्हाट इज द हार्मोन्स. सो द एंडोक्राइन सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ ग्लैंड सो दैट secrete chemical messenger we called hormones. Again I will discuss and again I will definition of the hormones like the endocrine system is a collection of glands so that secrete chemical messenger we called hormones. So these a single are the passed through the blood to at the target organ so which has a cell processing the appropriate receptor. So next one is the what does the endocrine system do. So क्या करता है endocrine system, one of the hormone firstly secreted करेगा. So
फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड से, क्या करेगा, फर्स्टली हार्मोन को सिक्रीट करेगा, किससे, एंडोक्राइन ग्लैंड से और स्पेसिफिक ग्लैंड से। सो प्रोड्यूस इट्स थॉट द ब्लड स्ट्रीम इन टू द सेल डिजाइन टू रिसीव इट्स मैसेंजर। अब क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में देखो एंडोक्राइन सिस्टम ने एक ग्लैंड से हार्मोन को प्रोड्यूस कर दिया और अब वो हार्मोन कहाँ गया, ब्लड स्ट्रीम में, और टारगेट करेगा एक स्पेसिफिक सेल को, स्पेसिफिक रिसेप्टर को। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड ए टारगेट सेल। जिस सेल को हार्मोन टारगेट करेगा किसकी हेल्प की वजह से, वो आगे डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि अमंग द वे ऑफ द टारगेट सेल स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंड टू द सम ऑफ द हार्मोन्स। सो दीज प्रोटीन एक्ट एज ए कैरियर, सो डैट इज ए कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हार्मोन डैट इज अवेलेबल फॉर द सेल टू यूज। अब देखो कैसे सेल के थ्रू वो काम करेगा। सो द टारगेट सेल हैव ए रिसेप्टर, सो डैट ऑन टू ओनली स्पेसिफिक हार्मोन। अब क्या है, देखो जिस टारगेट सेल को हार्मोन जिसमें रिलीज होगा, देखो हर हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक हार्मोन के लिए एंड ईच हार्मोन हैज़ इट्स ओन रिसेप्टर। तो वो क्या करेगा, एक अपने ही रिसेप्टर, देखो हर एक हार्मोन एक स्पेसिफिक टारगेट रिसेप्टर के थ्रू काम करेगा। देन क्या होगा, हार्मोन का जो लेवल है वो रीच होगा सेल में, कौन सा सेल, जो टारगेट किया हुआ होगा रिसेप्टर के थ्रू। सो डैट द ईच हार्मोन विल बी ए कम्युनिकेट ओनली विद द स्पेसिफिक टारगेट सेल, सो डैट हैव द रिसीव फ्रॉम द डैट हार्मोन। सो अगेन आई विल रिपीट द फर्स्टली क्या होगा, द टारगेट सेल हैव ए रिसेप्टर, सो डैट only specific hormone and each hormone has its own receptor, so each hormones will be communicate only with the specific target cell and that have receptor for that receptor। so that क्या करेगा, हार्मोन्स और रिसेप्टर दोनों क्या कर लेंगे, लाइक व्हेन द हार्मोन इज रीच इट्स टारगेट सेल, क्या कर लेंगे, इट्स लॉक्ड ऑन टू द सेल स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड दीज हार्मोन रिसेप्टर कम्बिनेशन। क्या होगा, फर्स्टली देखो हार्मोन कैसे काम करेगा। फर्स्टली हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन सिस्टम से कहाँ से, ग्लैंड से। ग्लैंड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है हार्मोन को। हार्मोन आगे क्या करता है, हार्मोन अगर देखो ब्लड में जाना है, ब्लड स्ट्रीम में, तो वो क्या करेगा, जो हार्मोन है वो टारगेट करेगा एक स्पेसिफिक रिसेप्टर को। स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू एक स्पेसिफिक टारगेट करेगा एक स्पेसिफिक सेल को। उस सेल में जब वो स्पेसिफिक सेल में अपने लेवल को रीच करेगा टारगेट सेल को, तो वो एक लॉक की तरह बना लेंगे, एक कम्बिनेशन हो जाएगा किसका, हार्मोन का प्लस रिसेप्टर का। तो वो ट्रांसमिट करेंगे केमिकल को किसमें, इनर साइड वर्किंग करेगा ऑफ द सेल में। तो व्हेन द हार्मोन लेवल रीच ए नॉर्मल अमाउंट, जब हार्मोन का लेवल जो है रीच हो जाएगा एक नॉर्मल अमाउंट पे, सो द एंडोक्राइन हेल्प द बॉडी टू कीप दैट लेवल ऑफ हार्मोन इन द ब्लड। सो अनदर एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल जो पैराथायराइड हार्मोन है, सो पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज करता है लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड में। सो व्हेन द ब्लड इज कैल्शियम लेवल इज राइज, जब कैल्शियम का लेवल राइज हो जाएगा तो पैराथायराइड ग्लैंड सेंस द चेंज एंड रिड्यूस देयर सेक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। सो दिस इज द टर्न ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड ए नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस। अब क्या है, फर्स्टली तो क्या है हमारा, पहले हार्मोन जो है वो सेक्रेट हुआ कहाँ से, एंडोक्राइन आगे ग्लैंड से। अब उसने क्या किया, वर्क करना है, वर्क करने के लिए उसने एक टारगेट किया स्पेसिफिक रिसेप्टर को। स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू उसने क्या किया, रीच हुआ एक स्पेसिफिक सेल में। अब क्या हुआ, नॉर्मल अमाउंट से, फॉर एग्जांपल मान लो कि सेल जो है रीच कर गया, हार्मोन जो है रीच कर गया सेल में, तो अब एक नॉर्मल अमाउंट से, तो सम टाइम क्या होता है, जो नॉर्मल अमाउंट से जब हार्मोन रीच ज़्यादा हो जाता है तो इट विल बी ए कॉज इफेक्ट, कॉज करेगा, वो साइड इफ़ेक्ट शो करेगा किसके, सेल के ऊपर साइड इफ़ेक्ट शो करेगा ना। तो इसके लिए क्या होगा, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हेल्प करता है ग्लैंड को, क्या कर देता है, वो स्पेसिफिक ग्लैंड को जो प्रोड्यूस कर रहा है हार्मोन, स्पेसिफिक हार्मोन, तो उसको बंद कर देता है।
उसको हम बंद करने को नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो क्या करेगा, वो उसको टर्न ऑफ कर देगा उस प्रोसेस को। तो नेक्स्ट वन इज द सर्कुलेटिंग और लोकल हार्मोन। अब देखो ब्लड में पहुंच गया, अभी क्या है, सर्कुलेट होगा। फर्स्टली क्या है, हार्मोन रिलीज हुआ एंडोक्राइन से, देन उन्होंने टारगेट किया एक स्पेसिफिक रिसेप्टर को, स्पेसिफिक सेल को। अब क्या है, जो हार्मोन है उसने अपना लेवल जो है नॉर्मल लेवल वो रीच कर दिया, किसमें, सेल में। आगे क्या होगा, सर्कुलेट कैसे होगा, लोकल हार्मोन तक। लाइक ए सर्कुलेट हार्मोन कैसे होगा, एक्ट करेगा ऑन डिस्टेंस टारगेट तक, ट्रैवल करेगा इन ब्लड तक। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ द सर्कुलेटिंग ऑफ हार्मोन इन द ब्लड। सो नेक्स्ट वन इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अब देखो जनरल मैकेनिज्म एक्शन कैसे आप कह सकते हो, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, सो आप यू शुड बी लाइक ए हार्मोन्स इज बाइंड टू द सेल सरफेस और रिसेप्टर इनसाइड टारगेट सेल। सो सेल में भी देन द सिंथेसाइज ए न्यू मॉलिक्यूल लाइक ए चेंज परमेबिलिटी ऑफ ए मेम्ब्रेन, so alternate rate of reaction. So each target cell response to hormone is definitely like a insulin in stimulate like a glycogen synthesis, or adipose like a insulin stimulate, triglyceride like a synthesis. सो मैकेनिज्म एक्शन इस बेस पे होगा। अब देखो ब्लड में भी पहुंच गया, हार्मोन रिलीज भी हुए एंडोक्राइन से, देन क्या टारगेट कर लिया सेल को, देन सेल में उसने अपना लेवल इंक्रीज कर लिया, सर्कुलेट हो गया ब्लड में। अब देखो कंट्रोल कैसे करेंगे हम, कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रीशन। फर्स्टली क्या करेंगे, रेगुलेट बाय द सिग्नल फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, सो केमिकल चेंज इन द ब्लड। सो नेगेटिव फीडबैक से हम कंट्रोल करेंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक एग्जांपल मैंने आपको दी थी पैराथायराइड हार्मोन की, कि जब पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। तो व्हेन क्या करता है, व्हेन द ब्लड इज कैल्शियम लेवल राइज्ड, तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है सेंस करेगा चेंज करने के लिए और रिड्यूस करेगा देयर सिक्रीशन को ऑफ किसकी, पैराथायराइड हार्मोन्स की। तो इसमें क्या कर देंगे आप, टर्न ऑफ कर दोगे उसको, उस प्रोसेस को जहाँ से कैल्शियम रिलीज हो रहा है। तो जब वो कैल्शियम ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वो एक साइड इफ़ेक्ट शो करेगा, तो हमें नहीं चाहिए कि कोई साइड इफ़ेक्ट शो करे। इसीलिए क्या कर देते हैं, जहाँ से वो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है जो उससे ग्लैंड से, उस ग्लैंड की वो सिक्रीशन को बंद कर देता है कौन, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ऐसे हम कंट्रोल कर लेंगे। लाइक ए नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मोस्ट कॉमन लाइक ए डिक्रीज और इंक्रीज द लेवल ऑफ इज द रिसीव्ड। तो क्या है, कई बार क्या होता है, अभी कम सिक्रीशन हो रही है तो इसीलिए फुल अमाउंट पहुंच नहीं रही बॉडी तक, तो इसके लिए कई बार इंक्रीज़ करना पड़ता है लेवल, कई बार डिक्रीज़ करना पड़ता है हार्मोन का लेवल। सो पॉजिटिव फीड कंट्रोल में क्या करेंगे, दी चेंज करेंगे प्रोडक्शन बाय द हार्मोन कॉज बाय द मोर हार्मोन टू बी रिलीज करके। सो लाइक ए एंडोक्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है, लाइक ए ओवर प्रोडक्शन ऑफ ए हार्मोन, अंडर प्रोडक्शन ऑफ ए हार्मोन, नॉन फंक्शनल रिसेप्टर, सो डैट कॉज द टारगेट सेल टू ए बिकॉज insensitively to hormone. So these are the endocrine related problem. So next topic में हम कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, we will discuss each and everything in next lecture. So thank you very much and take care.